Okay, in this question, he is asking to state Kirchhoff's first law. But what is the name of Kirchhoff's first law? The other name of Kirchhoff's first law is Kirchhoff's current law. What is its statement, बच्चों? Sum of currents towards a junction is equal to sum of currents away from the junction, right? Okay, Kirchhoff's first law is linked with conservation of certain quantity. State this quantity. बच्चों बार बार बताया मैंने आपको इस quantity का नाम. Charge. Yes, Kirchhoff's first law is based on law of conservation of charge, right? Next question is a variable resistor R is used to control the current in the circuit as shown in figure 5.1. This is a variable resistor, right? A generator G has an EMF of 20 volts and internal resistance of 0.5 ohms. The battery has an internal EMF of 12 volts and applied with the internal and has internal resistance of 0.1 ohms. The current in the circuit is 2 ampere. Apply Kirchhoff's second law to the circuit to determine the value of resistance R. जी बच्चों, Kirchhoff's second law. Have we done the similar question in our theory? जी बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन हमने थ्योरी में किया हुआ है. किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी गेन फ्रॉम द बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी ड्रॉप्ड एट रेजिस्टर्स, राइट? इस केस में डोमिनेंट बैटरी कौन सी है, 20 वोल्ट्स वाली या 12 वोल्ट्स वाली? 20 volts वाली. सो नेट करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का. नेट करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा. ठीक है, ओके. सम ऑफ वोल्टेज गेन्स इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स. अप्लाई करें इस पे. सम ऑफ वोल्टेज गेन इज इक्वल टू सम ऑफ voltage drops. Okay, what is the source of voltage gain? Batteries. So 20 plus 12 लिखूं या 20 minus 12 लिखूं? सर माइनस. Yes, because दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये एक दूसरे की करंट्स को कैंसल आउट कर रहे हैं, राइट? सो 20 minus 12 is equal to what is the value of voltage drop? करंट आपने कितना मेंटेन करना है? 2 amperes. 2 times what is the value of total resistance? 0.5 plus 0.1 plus R. ठीक है, 20 minus 12 is 8. 8 divided by 2 is 4. 4 is equal to 0.6 plus R. R is equal to 4 minus 0.6, which is equal to 3.4 ohms. So I have done this without calculator. सर ये 0.1 माइनस नहीं आएगा? प्लस होगा सारा कुछ. रेजिस्टेंसेस ऐड होते हैं, रेजिस्टेंसेस नहीं माइनस होते. रेजिस्टर का पॉजिटिव माइनस नहीं होता, वोल्टेज सोर्सेस का होता है पॉजिटिव माइनस. रेजिस्टर्स हैव नो पोलैरिटी. अब बताओ क्यों माइनस होगा? फिर जो उस दिन जो क्वेश्चन किया था वो जब ऑपोजिट हम लोग मूव करते थे डायरेक्शन की, तो हम लोग IR माइनस साथ लगा रहे थे. माइनस करंट के साथ लगा रहे थे, लेकिन इसमें कोई कैंसलिंग आउट वाला करंट है ही नहीं, एक ही करंट है. एक 2 इसमें वो है ना, करंट है ना 2. जी 2 एम्पेयर करंट है. ठीक है, वो 2 एम्पेयर कांस्टेंट है थ्रू आउट, कोई कैंसलिंग आउट वाला करंट नहीं है. वो तब होता है जब कोई ना कोई पाथ शेयरिंग होती है. समझ आ गई? कैन वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट? सर ये पाथ शेयरिंग वाली बात समझ नहीं आई. पाथ शेयरिंग ये होता है कि अगर इस तरह से एक सर्किट है और इस तरह से एक सर्किट है, ठीक है, ये वाला जो लूप है इसका करंट I1 है, ये वाला जो लूप है इसका करंट I2 है.
तो ये वाला जो रेजिस्टर है ये I1 और I2 को शेयर कर रहा है, ठीक है। तब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन वाले माइनस होते हैं। ठीक सर जी, आगे समझ। Calculate the power generated by G. जी बच्चों, what is the formula of power? Power equals VI, right? What is voltage of V of power supply G? 20. What is its current? Its current is 2. So what is the value of power generated? 40 watts. Calculate the power loss in the total internal resistances. जी बच्चों, power loss is equal to I square R, और यहाँ पे दो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। पावर लॉस इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? 2 एम्पीयर। What is the value of internal resistances? In fact, there are two internal resistances. One is 0.5 and the other one is 0.1. Right? So I'll write 0.5 plus 0.1. क्या आंसर आ रहा है? 1.2. Yes, this value is equal to 1.2 watts. The circuit is used to supply energy in the battery of the generator. Determine the efficiency. जी बच्चों, अगर आउटपुट पावर फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे? पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट माइनस पावर लॉस्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट पावर या जनरेटेड पावर? जी बच्चों, 40 watt. 40 watts. What is the value of lost power? So 1.2. 1.2. What is the value of, सब लोग बताए बच्चों, what is the value of this answer? 38.8. 38.8 watt. Now you have to find the value of efficiency. Efficiency is equal to power output over power input multiplied by 100, right? The value of power output is 38.8. What is the value of power input? 40 whole multiplied by 100. Find out this value. $38.8 divided by 40 multiplied by 100. So 97. Yes, exactly 97. सर पावर लॉस में सिर्फ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है बस वही आती है? जी, और क्या आएगा? पावर लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा क्या आएगा? तो सर जो सर्किट में वैसा रेजिस्टर लगा होता है उसमें नहीं पावर लॉस होती? जी, सर्किट में वैसे जो रेजिस्टर लगा होता है उससे पावर लॉस नहीं होती? वही तो पावर आउटपुट होती है। और कहाँ पे पावर आउटपुट मिलनी है आपको अगर एक्सटर्नल रेजिस्टर में नहीं मिलनी तो? ठीक सर, देखिए। जी बच्चों, किसी और का कोई क्वेश्चन? बिलाल, माज, जीशान, नहीं सर। रमील. Okay, let's move on to the next question, which is slightly difficult. ठीक है? This is star question. Star question means that you may feel a difficulty in this one, right? But we will try to solve it with an easy method. A potentiometer circuit that is used as mean of comparing potential differences is shown in figure 5.1. The cell E1 and the internal resistance R1 is connected in the series with the resistor of resistance R1 and uniform metal wire of the total resistance R2. Here's R1 and here's R2. ठीक है? This is capital R1 and metal wire has a total resistance of capital R2. A second cell of EMF E2 and the internal resistance R2 is connected in series. A sensitive ammeter and is then connected across wire BJ. जी बच्चों, वायर BJ पोटेंशियोमीटर है या उसका पोर्शन है? ये येलो वाली सारी की सारी पोटेंशियोमीटर वायर है
तो बी जे जो है उसका एक सर्टन पोर्शन है, ठीक है। द कनेक्शन एट जे इज हाफ वे अलोंग द वायर, द करंट डायरेक्शंस आर शोन इन फिगर 5.1, ठीक है। इस पाथ में कितना करंट नजर आ रहा है, ऊपर वाली पाथ में I1, और नीचे वाली पाथ में कितना करंट नजर आ रहा है बच्चों, I2, और इस वाली पाथ में कैन यू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज थ्री करंट्स? सर I1 plus I3 is equals to I2. Yes, two currents I1 and I3 are towards the junction, and one current, that is I2, that current is away from the junction. So I1 plus I2 is equal to I1 plus I3 is equal to I2. So this is the relationship. Okay, use Kirchhoff's law to write a relationship between I1, I2, and I3. So we have just written this relationship as I1 is equal to, sorry, I1 plus I3 is equal to I2. Now you have to find the relationship between E1, R1, R2, R1, I1, and I2 in the loop H, B, J, F, G, H, A. And that loop is this loop. H, B, J, F, G, H. F, H, B, C, D. Sorry. H, B, C, D, J, F, G, H. This loop. Is it clearly visible on your screens, बच्चों? Okay. Which source will be considered as positive? मैं इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ इस पूरी पाथ को, ताकि आपको पता चले कि लूप कौन सा है. The loop is being highlighted in purple color, बच्चों. This is the loop. Purple वाला loop है, right? Okay. You are considering current in clockwise direction or anti-clockwise direction? एंटी क्लॉकवाइज. इस डायरेक्शन में करंट कंसिडर कर रहे हैं. So tell me, according to this direction, which cell has positive EMF? जल्दी. E1 has positive EMF. E2 की EMF इसमें माइनस होगी या इसमें ऐड होगी? ऐड. माइनस होगी बच्चों. अपोज कर रही है इसको. करंट्स देखो, I1 को और I3 करंट एक दूसरे को अपोज कर रहा है. और नलाइको, सॉरी सर. E1 माइनस E2 इक्वल्स, इस पाथ से स्टार्ट करो. I1 किस किसका करंट है? सर सिर्फ I1 R1 का. सिर्फ R1 का नहीं है, कैपिटल R1 का भी है, स्मॉल R1 का भी है. समझ आई? और जी I3 सर. किसका करंट है? सर वो R2 का. R2 का करंट है, स्मॉल R2 का, लेकिन उसकी डायरेक्शन अज्यूम्ड डायरेक्शन के अलोंग है या ऑपोजिट नेगेटिव है? सर होगी. सर तो ऑपोजिट है. ऑपोजिट है, तो माइनस I3 टाइम्स R2, minus I3 times R2. This is how you attempt this part. ठीक है? So we are done with this complete loop. Right? Okay, next. The connection at J is moved along the wire. ये हमने ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है, नीचे वाले लूप की लिख दी है. ऊपर वाले लूप की भी लिखवाओ ना लाइको. ऊपर वाला लूप कौन सा है? ये तो मुझे आसान लग रहा है. H, B, J, F. आसान है. ये तो बहुत आसान है, लिखवाएं मुझे सिर्फ ऊपर वाला लूप. सर E1 is equals to yes, E1 is equal to I1 small R1 plus capital R1 bracket close. मारो तुझे जूते. बच्चों इसकी मिस्टेक पकड़ो जल्दी से. सर ब्रैकेट R1 नहीं होगा क्योंकि वो इंटरनल है. R1 होगा, क्यों इंटरनल? नीचे वाले में नहीं कंसीडर किया. सर एक पहले भी ब्रैकेट आएगा सर. जाहिल इंसान इस पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर करनी.
I1 अरे तो हमने किसका फिर करंट है? इसका जो सेकंड पार्ट किया हमने उसमें भी तो नहीं कंसिडर की फिर। हो बच्चों, आप लोग बहुत नालायक हो, मुझसे भी ज्यादा। अब इसको जरा ध्यान से देखो। जब करंट गैदर अप हो जाएगा, उसको भी दोबारा देखना पड़ेगा बच्चों। हाफ वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? हाफ वायर को मैं ऑरेंज कलर से हाईलाइट करता हूँ। कितने पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है? टोटल वायर की R2 है। सर हाफ R2 हो जाएगी। यस, R2/2 हो जाएगी। और नेक्स्ट ब्लू वाले पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी है? सर उसकी भी हाफ R2 हो जाएगी सर। उसकी भी R2/2 होगी। तो इसको तो लास्ट नेक्स्ट पार्ट को तो आपको ठीक करना पड़ेगा, पहले इसको ठीक करो। I1 किस किस का करंट है? सर R1 का, R2 R स्मॉल R1 का। R1 का, कैपिटल R1 का, और हाफ R2 का। इसका करंट भी I1 ही है। I2 किसका करंट है? सर वो हाफ R2/2। जी। तो मैं इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ, ये आसान क्वेश्चन नहीं था। नीचे वाला भी ठीक करें। नीचे वाले में भी आपने I1 कंसिडर करना है, तो उसके साथ एक और रेजिस्टर ऐड होगा। R1 और R2 के साथ एक और रेजिस्टर ऐड होगा। R1+R1+R2/2, ये भी कंसिडर होगा, बिकॉज हम इतने पार्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। समझ आई? जी सर। ओके। कनेक्शन एट J is moved along the wire. Explain why the reading on the ammeter changes. जी बच्चों, J को जब आप मूव करेंगे तो एमीटर रीडिंग क्यों चेंज होगी? एमीटर आपको कौन सा नेट करंट दे रही है? एमीटर कौन सा करंट बता रहा है बच्चों आपको? I3। ठीक है। जी सर। तो जब इतने पार्ट ऑफ वायर की रेजिस्टेंस चेंज होगी तो करंट भी चेंज हो जाएगा। चेंज होगा। तो आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि रेजिस्टेंस चेंजेस ड्यू टू चेंज इन लेंथ ऑफ, क्या कहते हैं इस वायर को? ड्यू टू चेंज इन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो करंट विल ऑल्सो चेंज। करंट विल ऑल्सो चेंज। तो बच्चों मैं इस पार्ट के ऊपर दोनों पे स्टार लगा रहा हूँ, बिकॉज इसमें आपने क्या करना था? पोटेंशियोमीटर की डिस्टेंस जो टोटल है R2, उसको दो हाफ्स में डिवाइड करके फिर कंसिडर करना था। राइट। नेक्स्ट पार्ट इज, this is very similar to the part we've done already. Two cells A and B are connected in series with the resistor R of resistance 5.5 ohms as shown in figure 4.1. Right? So Kirchhoff's law apply कर दो, सिंपल है बच्चों। नेट वोल्टेज कौन सी ज्यादा है, 4.4 या 2.1? 4.4 की वजह से 4.4। नेट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेट्स कंसिडर दैट दिस करंट इज I. how you will proceed? तो दूसरा ऑपोजिंग वाला माइनस करेंगे। जी, अपोजिंग वाली EMF माइनस करेंगे और आप सिंपली सर इसकी लेकिन इक्वेशन उसका लिख दोगे। डायरेक्शन तो इन्होंने दी नहीं, वो ऐड भी तो हो सकती है। जी, ऐड नहीं हो सकती। क्या ऐड हो सकती है? पॉजिटिव जब पॉजिटिव से कनेक्टेड हो ये सर नहीं हो सकती। तो माइनस होती हैं। राइट। स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ। जी बच्चों, व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ? इन अ क्लोज सर्किट या इन अ लूप? बताएं आगे। सम ऑफ वोल्टेज गेन्स, मैं पूरा नहीं लिख रहा, इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट बच्चों, सिंपल। हेल्प मी राइटिंग डाउन द इक्वेशन फॉर किरचॉफ्स लॉ। 4.4 माइनस
2.1 is the value of voltage gain equals I. What is value of R? 2.3 Sir, plus 1.8 plus 5.5 plus 2.3. 1.8 plus 2.3 plus 5.5. You find out this value quickly, बच्चों. 4.4 minus 2.1 will give you 2.3 equals I times this total current is 5.5 plus 2.3 is 7.8, 8.6, 9.6. क्या वैल्यू आ रही है बच्चों? 0.24. 0.24. 0.24 एम्पेयर. 0.24. अब देखो थर्ड टाइम इस तरह का क्वेश्चन की है तो आपकी प्रैक्टिस होगी. ऑन फिगर 4.1 draw an arrow to show the direction of the current in the circuit. Label this arrow I. जी बच्चों, नेट करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? Anti-clockwise. यस, लेबल कर दिया इस एरो को. कैलकुलेट द पोटेंशियल क्रॉस रेजिस्टर आर. अच्छा बच्चों, मजे की बात बताऊं, सम ऑफ वोल्टेज आपका जितना गेन है ना वही इसके क्रॉस ड्रॉप होना है. सॉरी, ये जरा स्क्रॉल करना पड़ा है मुझे. वी आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन ना. 4.4 माइनस 2.1 करेंगे ना, बल्कि वो नहीं होना. इसके अंदर करंट कितना आपने फाइंड किया है? 0.24. तो इसका वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे? Sir, 5.5 into Sir, 5.5 into 0.24. Voltage is equal to IR. I is 0.24 and R is 5.5. फाइंड करें बच्चों जल्दी से. 1.32 आ रहा है. 1.32. Okay, the terminal potential difference of A. Terminal potential difference of A. इस सेल का अगर इसकी ईएमएफ में से इसका लॉस्ट वोल्ट्स निकाल दें तो टर्मिनल पीडी आ जाएगा. इसका लॉस्ट वोल्ट्स कितना है? Sir, 2.3 into 0.24. जी, V lost is equal to 2.3 मल्टीप्लाई बाय 0.24. क्या वैल्यू आती है? 0.55. 0.55 volts. Now you have to find the value of V terminal. EMF minus lost volts. EMF कितनी थी सेल की? Sir, 4.4. Yes, 4.4 minus 0.55. Now tell me what is next part? Terminal PD of sorry, आंसर क्या है? Sir, answer आ रहा है 3.85. 3.85 volts. Terminal PD across सेल B. सेल B का लॉस्ट वोल्ट्स कितना है? V terminal is equal to 0.432. EMF minus loss 0.24 voltage. into 1.8. लॉस वोल्टेज कितनी है इसकी? सॉरी, EMF कितनी है? 1.8 into 0.24. 2.1. लॉस वोल्टेज कितनी है? 0.432. आंसर बताओ. 68. 1.668. ये गलत आंसर है. 1.67. ये गलत आंसर है. और गलती आप लोगों ने की है. कैसी बात? बच्चों
करंट आंसर अलग गलत, लेंगे? ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। फिर जो आपने सोल्यूशन लिखा है उसके मुताबिक सही है जो हमने निकाला है। अगर आप कह रहे हैं करंट और इसका, तो फिर हम दोबारा कर लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं अब जीरो पॉइंट आप ये फोर मुझे ये प्लस फाइव का बताओ, साइन होगा। जी यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन होगा, इस केस में लॉस्ट वोल्ट में ये ऐड होगा। ये आंसर बताएं कितना आ रहा है। तो दोबारा रिपीट करेगा, क्या कह रहे हैं? यहाँ टू पे पॉइंट प्लस, फाइव थ्री यहाँ पे प्लस का साइन होगा बिकॉज जब ये वाला सेल पॉजिटिव है, ध्यान से सुने, मैंने बार बार नहीं बताना, तो जब इसका करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर होगी या माइनस कंसिडर होगी, उसके रिस्पेक्ट से, ऊपर वाले सेल के रिस्पेक्ट से। फिर अगर ये सर ऑपोजिट करंट जा रहा है तो नेगेटिव फिर हो तो जाएगा, माइनस ठीक सर, होगा ना? आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। माइनस होगी, इस वजह से आपने इसको भी लेना है कि अगर ये ईएमएफ है तो ये माइनस में है। ठीक है, मतलब माइनस का मतलब जो ये ईएमएफ है ये इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज ड्रॉप है दूसरे के रिस्पेक्ट से, और लॉस वोल्ट तो होता ही वोल्टेज ड्रॉप है। ड्रॉप्स ऐड होते हैं या सर कैंसिल आउट होते आंसर भी हैं? ड्रॉप्स ड्रॉप्स तो कैंसिल जी, आउट होते हैं नहीं? ड्रॉप्स ऐड होते हैं, लाइक दोनों ड्रॉप्स है, एक गेन और एक ड्रॉप हो तब माइनस होते हैं। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर जो बच्चे बता रहे हैं वही है। 2.532। यस, किसने बताया? यस सर, यही है 2.532। 2.5 समझ आई क्यों ड्रॉप हुआ है? बिकॉज बोथ वोल्टेजेस आर नेगेटिव, तो उनके मैग्नीट्यूड एड अप होंगे। फर्स्ट के रिस्पेक्ट से दूसरा भी, दूसरी वोल्टेज जो है वो माइनस साइन के साथ है, तो वो वोल्टेज ड्रॉप है। राइट, ओके बच्चों, so this was enough practice of P2 at my end. You can do a lot more number of questions regarding this. Okay bachcho, here we have a paper in front of us and we are going to attempt only questions of electricity regarding in this paper. ठीक है, बिलाल समझ आ रही है? जहाँ पे आपको समझ नहीं आया आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आपका पता नहीं चल रहा, आप बताओ कि नहीं समझ आ रही, बताओ क्लास में। जी सर। Okay, let's start with the questions of electricity. So I guess this is the first question of electricity. A length of wire is connected to, बच्चों नजर आ रहा है पेपर? इसका ईयर नोट कर लें जी सर। यस सर। जी, इसका ईयर नोट कर लें। इट इज मई जून 21 पेपर 11। मई जून 21 ये जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है, जन्नत आपका रिसेंट हुआ है पेपर। The length of the wire is connected into the electric circuit. The current in the wire is measured. Which change on its own could increase the current in the wire? Which change on its own could increase the current in the wire? जी बच्चों, अकॉर्डिंग टू V इक्वल्स IR, करंट को इंक्रीज होने के लिए रेजिस्टेंस को क्या होना जरूरी है? सर कम। डिक्रीज। कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अच्छा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होने के लिए रेजिस्टिविटी को क्या होना चाहिए? सर लेंथ को क्या होना चाहिए? डिक्रीज। लेंथ को क्या होना डिक्रीज चाहिए? एरिया को ज्यादा। जी, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नंबर वन एंड इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर। नहीं, उससे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ वायर, यस, उससे एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, नहीं, उससे तो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगी। इंक्रीज इन द रेजिस्टिविटी, वंस अगेन उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, करंट ड्रॉप हो जाएगा। सो व्हाट इज द नियरेस्ट पॉसिबल राइट आंसर? आंसर बताओ बच्चों। B. बी इज द राइट आंसर। यस, इंक्रीज द रेडियस, एरिया इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। अ सेल इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 6 volts। ठीक है, 6 volt means unit charge is carrying how much energy?
6 joules. Yes, 6 joules of energy. From which destination या from which place EMF किस चीज की होती है? From the battery, right? 1 coulomb of charge always dissipates 6 joules of energy in the internal resistance or all the whole circuit. ये गलत है. Electron gains 6 joules of energy when passing through the cell. जी बच्चों, व्हाट अबाउट दिस ऑप्शन? मुझे ठीक लग रही है, ऑप्शन बी है ना? और सही लग रही है। सही लग रही है, मुझे तो नहीं सही लग रही. एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरी करेगा या 1 कूलम चार्ज कैरी करेगा? सर सही पकड़ लिया है, सर गलत है। सही पकड़ लिया नहीं, सही सर कंफ्यूज कर चार्ज दिया. भी तो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है ना. बट 1 कूलम ऑफ चार्ज is not 1 electron, it is almost 6.25 into 10 raised to power 18 electrons. This much electrons gather to form 1 coulomb charge. समझ आई? There is a potential difference Yes, of sir. 6 volts applied across when the external resistance is connected to the cell. नहीं, potential difference 6 volt नहीं होगा सी because नहीं. some of the potential is नहीं. dropped. When 1 coulomb of charge passes through the cell, 6 joules of chemical energy is transformed into electrical energy. D is the right answer, I guess. ठीक है. सी क्यों नहीं होगा? बिकॉज कुछ सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जाएगा अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट बिकॉज सम इज ड्रॉप्ड अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. राइट? ओके. In this part, what is the total resistance of each resistance is R. मैंने आपको बताया कि अगर आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करें तो नेट रेजिस्टेंस कैसे आ सकती है. लेट्स सपोज इस पैरेलल की, तो resistance of one resistor divided by total resistance in parallel. How much total resistances are connected in parallel? ठीक है. नेक्स्ट वाले की रेजिस्टेंस कैसे आएगी पैरेलल की? सर R/3। R/3. और ये ओवरऑल सीरीज में एक दूसरे के साथ. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी आ गई है? फाइंड करें. बहुत स्लो हो बच्चों आप लोग, डी बहुत नहीं. स्लो, 6 आर. इंतहाई स्लो लोग हो आप लोग. 6R plus 3R plus CR. Sir, the correct option is C. 11R आता है इसका सम. कनेक्ट है। शहीर किधर थे आप? मिस्टर शहीर, वेयर वर यू? आवाज ही नहीं आ रही. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, Sir, it attempt. was not Shahir, it was Ramil. Okay, Ramil. Next one is 3 resistors are connected in series and the battery as shown the battery has negligible internal resistance. तो जो आपका लॉस वोल्ट है वो 0 है, जितना आपका ईएमएफ है वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट होगा? टर्मिनल पीडी में कन्वर्ट होगा. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 180 ओम रेजिस्टर? जी बच्चों, इतना आसान सवाल वो क्यों पूछ रहा है? इसको पोटेंशियोमीटर मेथड Sir, से करो. 180 over 450 into 6. R1 over R total multiply by supply voltage. What is the resistance of single resistor? Divided by what is the resistance of total resistance? 450. Multiply by supply voltage. जी बच्चों, I guess यही आंसर आ रहा है. 2.4. Yes, Correct option 2.4. is All B. you are B for ball. you all are correct. B for ball हमें भी पता है. Okay बच्चों, for today this is the last question we are attempting. अब इसमें सीन देख ले क्या होगा.
QS के क्रॉस कुछ सर्टेन वोल्टेज होगी। जी सर। जी बच्चों, इसकी लेंथ की वजह से इसके क्रॉस को वोल्टेज होगी। सॉरी, ये वाला एरो रिकमेंडेड नहीं है, ये वाला एरो यूज करता हूँ मैं। ठीक है, अगर ये वोल्टेज होगी तो इस वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा, Q या S? क्यों? Yes, because that is connected with the positive terminal of बैटरी। और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा इस वोल्टेज का, S। तो एस। इस वोल्टेज की वजह से लोअर सर्किट में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ना। यस। तो लेट्स कॉल दिस करंट I1। इस सेल की वजह से ये इस सेल की वजह से करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, इस पॉइंट पे। पॉजिटिव टर्मिनल से लेफ्ट की तरफ फ्लो करेगा ना। लेट्स कॉल दिस करंट I2। जी बच्चों, ये डिफ्लेक्शन जीरो कब होगी, ये अनडिफ्लेक्टेड कब होगा। सर जब एस क्यू पे आ जाएगा। नहीं, जब I1 और I2 इक्वल हो इक्वल जाएंगे। होंगे और एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, जब ये दोनों करंट्स इक्वल होंगे, करंट्स इक्वल है तो इसका मतलब है जो इनकी सोर्स वोल्टेज है वो भी इक्वल है। यस सर। ठीक है, ऊपर वाले की सोर्स वोल्टेज क्या है, I1 की वोल्टेज अक्रॉस QS। नीचे वाले की सोर्स वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ऑफ बैटरी X। तो इसका मतलब है अगर वोल्टेज X की बैटरी अननोन है तो QX की जो वोल्टेज होगी वो इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। What is not necessary requirement to determine the EMF of cell X in the circuit? जी बच्चों, सेल X की EMF किसके इक्वल आ रही है बाय द वे, जी बच्चों, सेल X की EMF किसके इक्वल आ रही है, वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट Q एंड S। एस। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं करंट बैलेंसिंग मेथड, करंट बैलेंसिंग मेथड। नाउ टेल मी हाउ यू विल फाइंड वोल्टेज X। वोल्टेज X इज द वोल्टेज अक्रॉस QX। QS की वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हो, लेंथ QS डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ QR मल्टीप्लाई बाय सप्लाई वोल्टेज E। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको QS भी चाहिए, आपको QR भी चाहिए और आपको E भी चाहिए। ठीक है, ही इज आस्किंग यू दैट व्हाट इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ EMF। इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। और भाई इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल X। नॉट है ना। अच्छा, EMF ऑफ सेल X चाहिए, मस्ट बी लोअर। हाँ, ये होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। अगर ये लोअर होगी तभी तो बैलेंस आउट होगी लेसर लेंथ से। यस सर। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल X मस्ट बी नोन। सेल X की EMF पता होनी चाहिए इस केस में। सेल एक्स की इंटरनल रेजिस्टेंस आईएमएफ नहीं। जी, इंटरनल रेजिस्टेंस नेक्स्ट पार्ट देखो, इसको बाद में देखते हैं। लेंथ Q S और QX पता होनी चाहिए। हाँ ये होना ही चाहिए, होनी चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ वायर QR पता होनी चाहिए। यस सर। नहीं पता होनी चाहिए, क्यों पता होनी चाहिए रेजिस्टेंस, बिकॉज वोल्टेज तो रेशो ऑफ लेंथ पे डिपेंड टू एस कर की रहे हैं। निकालेंगे ना रेशो। रेजिस्टेंस नहीं पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि वोल्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस बीच में से स्किप हो जाती है। विच इज द आंसर बच्चों, ऑप्शन डी इज द सर राइट डी आंसर। बन रहा है। जी, डी ही तो बन बी रहा है। क्यों नहीं है? बी क्यों नहीं है, यस सर। बी इस वजह से नहीं है कि जो करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होता, होता है। और सॉरी रेजिस्टेंस पे।
रेजिस्टेंस पता होगी तो ये करंट भी वेरी करेगा, ये करंट सेम नहीं रहेगा थ्रू आउट।